चलो, we'll start with the next part of the topic. Structural organization in the animals is what we are studying, जिसमें हम लोग animal tissues पढ़ रहे हैं. So we are studying all these different types of animal tissues. Sir, WhatsApp link, कौन सा WhatsApp link चाहिए अभी? NMT 205. NM क्या है? नवी मुंबई. हाँ, ठीक है. क्या चाहिए आपको? एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना. ये था लास्ट स्लाइड. कैल्सिफाइड कार्टिलेज, एपिफाइजियल प्लेट की बात की थी हम लोगों ने. या विच इज फाउंड इन द स्मॉल चिल्ड्रन. पढ़ा था ना ये हम लोगों ने कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था सर. हाँ, एपिफाइजियल प्लेट फाउंड इन द स्मॉल चिल्ड्रन, present at the end of the long bones, and as the age advances this particular structure will fuse. मतलब ये temporary structure है, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीने के लिए रहता है. Later on it fuses and converts itself into a bone. Okay, so we are going to start with the next part, that is the bone. Right, अभी bone के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. I was ill so I missed. Very good. अच्छा, जो भी है, the one who is asking for the link, मैं थोड़ी देर में करता हूँ. ओके, यहीं पे मैं पोस्ट कर देता हूँ, then you can join. एक मिनट रुको, अभी हो सकता है क्या, देखते हैं. Let's see if it's possible now. ये ले लो, हो गया. Okay, so we'll start with the bones now, which is the, I think, the last structure in this connective tissues, and later on then we have to start with the muscular tissue. Connective tissue खत्म हो जाएगा, उसके बाद muscular tissue and nervous tissue, ये दो tissues बनेंगे. Now bone basically will form the framework of the body. तो हमारे body का पूरा जो framework बनता है, that is basically because of the bones. So they actually form the endoskeleton. Okay, तो हमारे system का, हमारे body का ये पूरा endoskeleton है. Right, so we're going to understand that now. It's a type of connective tissue. Now why we call this as connective tissue? Because it connects one part of the body with another, or they are all connected to each other. Okay, and since they are all connected to each other, so naturally they are going to form this part. Now this is considered as one of the hardest tissue in our body. So it's a overall सारे tissues में से one of the hardest tissues is going to be the bone. Total number of bones which are present in our body are 206. 206 टाइप का हड्डी होता है. ठीक है, हम लोग इसका स्टडी बाद में करेंगे, स्केलेटन एंड लोकोमोशन में आएगा, तो एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू स्टडी द एंटायर स्केलेटन. लेकिन अभी फिलहाल इतना याद रखो दैट द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इज 206. 206 अलग अलग टाइप के बोन्स होते हैं. द लॉन्गेस्ट बोन बीइंग द फीमर और आल्सो कॉल्ड एज द थाई बोन. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फीमर या फिर थाई बोन. सो दैट इज कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट. स्मॉलेस्ट इज प्रेजेंट इन द ईयर, दैट्स कॉल्ड एज ईयर ऑसिकल, उसको हम लोग बोलते हैं. जैसे मिडल ईयर में वी हैव अ बोन, एंड आउट ऑफ दैट द स्मॉलेस्ट बोन इज कॉल्ड एज द स्टेपिस और आल्सो नोन एज द स्टीयरअप. अगर आप देखते हो ना तो 3 बोन्स है. देखो यहाँ पे, एक मिनट. हाँ, ओके, इफ यू सी हियर वी हैव, दिस इज वन बोन. ओके, सो दिस इज, ये वाला जो बोन होता है नंबर 1, दिस इज नोन एज हैमर. ये जो छोटा वाला बोन है, दिस इज सेकंड नंबर का बोन, दिस इज नोन एज एनविल. और ये थर्ड वाला जो एकदम छोटा बोन है, जो एकदम पीछे है, दैट इज नोन एज स्टेपिस और स्टीयरअप. ओके, इट इज नोन एज स्टेपिस और स्टीयरअप. Okay, so that is how it is pronounced. So these are the 3 bones: hammer, anvil, and stirrup. Okay, so that is how we see. Or malleus, incus, and stapes. Hammer is also called as malleus, M-A-L-L-I-U-S. Anvil is also called as the incus, and stirrup is also called as the stapes. Okay, तो ये 3 बोन्स है. दिस इज फ्रॉम आउटसाइड
to inside. Can you see this structure? ये दिख रहा है आपको? सुबह के लेक्चर में हम लोग ईयर ड्रम की बात कर रहे थे, बराबर है? सो दिस इज द ईयर ड्रम जो हमारा एकदम अंदर है, बाकी के एनिमल्स में से सरफेस पे रहेगा ना, जो हम लोग रेप्टाइल्स की वगैरह बात कर रहे थे सुबह, तो उसमें करेक्ट. सो दिस इज द ईयर ड्रम. तो ये 3 बोन्स है. सो हैमर और मैलियस, एनविल और इनकस, स्टीयरअप और स्टेपिस. So these are the 3 ossicles. उसमें से smallest one is going to be the stapes, or also called as the stirrup. ऋतुजा को चाहिए लास्ट स्लाइड, ये वाला है लास्ट स्लाइड. ये सब लिखना है दिया, फिर से लिख के देता हूँ. हो गया ऋतुजा? यस सर. फिर से चाहे तो यहाँ पे लिखता हूँ. हाँ, हैमर और मैलियस. दूसरा बोन आता है एनविल और इनकस, और तीसरा जो बोन आता है वो होता है स्टीयरअप और स्टेपीज. ठीक है. सो दैट इज हाउ वी सी दिस. मधुरा क्या हो गया? नो. मधुरा इज सेइंग नो. क्यों? हाँ, वो कॉकलिया, ये जो स्नेल जैसा दिख रहा है ना आपको, स्नेल्स शेल, दैट्स कॉल्ड एज द कॉकलिया. करेक्ट अमन. चलो, हो गया ये लिख के? Good. Yes sir. Yes sir. Now, if we observe the structure of the bone, just like any other organ in our body, bone will also be covered by a covering. तो इसको भी ऊपर से कवरिंग रहेगा. So that is known as a fibrous covering called as the periosteum. Peri का मतलब आता है around, osteos का meaning आता है bone. So it's a covering which is present around the bone. ठीक है, through which the blood vessels and the nerves will enter in. तो periosteum से blood vessels और nerves अंदर जाना चालू हो जाएंगे. So this is one structure which we have. So if we take out the cut section, then you can see this is periosteum. ये जो flap की तरह बाहर निकाला हुआ है ना, so that is periosteum. So the nutrient arteries होते हैं, ये सारे arteries रहेंगे. अच्छा, उसके साथ साथ पेरियोस्टियम के अंदर से और एक लाइनिंग आएगा, as you can see here, अंदर से लाइनिंग आएगा, that is known as endosteum. Okay, which surrounds the bone marrow. और या फिर ये पूरा कैविटी है यहाँ पे बन गया. तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा पूरा ऐसा कैविटी बन जाता है. So this cavity is called as the marrow cavity. Okay, so endosteum is going to cover the marrow cavity. बाहर से रहेगा पेरियोस्टियम, अंदर से रहेगा एंडोस्टियम. सर मतलब जब क्या है, जब से इनर पार्ट, जब सब इनर पार्ट वो ही असली बोन, मतलब जो सबसे इनर, नहीं, ये पूरा बोन है. पेरियोस्टियम इज जस्ट अ कवरिंग, लेकिन ये पूरा सब मिलकर बोन बनता है आपका. ओके, ये सब स्ट्रक्चर्स मिलकर बोन बनेगा, राइट. अच्छा, नाउ पेरियोस्टियम का ये देखना है सानिका. Done sir. तो बाहर का कवरिंग पेरियोस्टियम, कैविटी को अंदर से कवरिंग आएगा, दैट इज नोन एज द एंडोस्टियम. नाउ within, अच्छा, endosteum lines what? Endosteum lines the endosteum lines the bone cavity. Okay, so जिसको हम लोग बोलते हैं मैरो कैविटी और बोन मैरो कैविटी, ऐसा हम लोग उसको बोलते हैं. तो उसको ये लाइन करता है. Now inside this particular bone marrow or marrow cavity will be filled by this structure. So bone shows a hard matrix called as the ossin. क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में 2 पार्ट आएंगे, एक आएगा मैट्रिक्स, दूसरा आएंगे सेल्स. So depending upon the type of matrix, we have different types of you can say कनेक्टिव टिश्यू. जैसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा तो उसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं, या फिर फाइबर्स का बनता है तो उसको फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं. इस तरीके से सिमिलरली बोन विल बी हार्ड. Okay, so matrix of the bone is very hard, so we call this as ossin. And ossin is basically because of the deposition of mineral salts, and that mineral salt is known as hydroxyapatite. Okay, look at the formula, Ca10PO4 6OH2, very important MCQ के लिए. Okay, sir please show second slide. हाँ, 1-2 मिनट. सृष्टि
Just give me a 2 minutes. Hydroxy, this is called as what? This is known as hydroxyapatite. Okay, as I said, it's going to be a very important MCQ for all of us. So this is one thing which we need to understand. Is it clear? जैसे सारे टिश्यूज का अपना मैट्रिक्स होता है, वैसा ये बोन का मैट्रिक्स है, which is very hard. ओके, चलो सृष्टि, अभी कौन सा स्लाइड चाहिए बेटा आपको? ये वाला, दिस वन, इसके बाद वाला, इसके बाद वाला, दिस वन. यस ये सेंटेंस लिख लो पहले, इसके पीछे, इसके आगे दूसरा सेंटेंस है. डन. डन. Excuse me, sir. Yes. Sir, so can we say that endosteum and periosteum के बीच में bone is present? हाँ, और अंदर भी. हाँ, ओके. बीच में फिर बोन मैरो है और बाहर भी रहेगा. अभी आएगा, आगे और स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर रहे थे हम लोग, डोंट वरी. ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे तो ये तो हो गया. हाइड्रोक्सीएपेटाइट is the structure which forms the hard matrix of this particular bone, and matrix will be composed of the Harvesian system. अभी यहाँ पे ये जो ऐसे ring shaped structures दिख रहे हैं ना, these are called as the Harvesian systems or also known as the osteon. Okay, sir, I was disconnected cause network problem. Which part you are teaching us? This is structural organization in animals, connective tissue, bones. ठीक है सानिका घोड़के. Okay, so basically Harvesian system, this encircled जो circular structures जो दिख रहे हैं, ये वाला भी है, यहाँ पे ये एक है, इधर एक है, इधर एक है. So these are all called as the Harvesian systems. Okay, now these Harvesian systems are present here in this matrix. सानिका को mic option दे दिया मैंने, चलो, right? So the Harvesian system are also known as the osteon. So that forms the basic structural and functional unit of the bone. तो हमारे बोन का जो actual structural और functional unit जो होता है, this is called as Harvesian canal or Harvesian system. Okay. The entire substance is the matrix. श्रद्धा, ये brown जो दिख रहा है ना, पूरा ये matrix ही है. लेकिन ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स बन जाते तो उसको नाम दिया है हार्वेशियन सिस्टम और आल्सो नोन एज द ऑस्टियन. तो इसका मतलब हम लोगों को अभी हार्वेशियन सिस्टम पढ़ना पड़ेगा और उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स पढ़ने पड़ेंगे. नाउ हार्वेशियन सिस्टम और ऑस्टियन will have this important structure here in the center. This is known as the central canal. Can you see? हर एक एन सर्कल जो रहता है ना, सर्कुलर स्ट्रक्चर, उसके बीच में एक कैनाल है. ओके, देखो यहाँ पे ऑस्टियन जो लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे भी एक कैनाल है, इधर भी एक कैनाल है और ये भी एक कैनाल है. Okay, so this canal which is present here is known as the central canal, which contains the blood vessels, lymph vessels and nerves. तो बोन के एग्जैक्टली सेंटर में अंदर की तरफ ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फ वेसल्स, ये सब रहेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. सो दिस इज नोन एज द सेंट्रल कैनाल व्हिच कैरीज द ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड द नर्व्स. उसके बाद देन वी आर गोइंग टू हैव कॉन्सेंट्रिक रिंग्स. ऐसे लैमिनार रहते हैं, लैमिनार रहते हैं और कॉन्सेंट्रिक रिंग्स रहते हैं, गोल 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 गोल. सो द मैट्रिक्स इज इन द फॉर्म ऑफ दीज कॉन्सेंट्रिक रिंग्स. यू मे ड्रॉ दिस लाइन डायग्राम, आप ड्रॉ कर सकते हो या फिर आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, लाइक दिस, फ्रंट रीजन से. ओके, बट इट विल शो दिस कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, और ये रिंग्स के बीच में देयर आर स्मॉल स्मॉल कैविटीज. तो सपोज ये रिंग मैंने निकाला है,
तो यहाँ पे कैविटी रहेगा, इधर कैविटी रहेगा, इधर कैविटी रहेगा, इस तरीके से देयर आर स्मॉल स्मॉल कैविटीज और द स्पेसेस व्हिच आर प्रेजेंट हियर, दैट्स कॉल्ड एज द लैक्यूना. एंड लैक्यूना मतलब कैविटी which has the important cells known as osteocytes. तो ये एक कॉन्सेंट्रिक रिंग हो गया, फिर यहाँ पे और एक कॉन्सेंट्रिक रिंग हो गया, इधर कॉन्सेंट्रिक रिंग हो गया, इधर कॉन्सेंट्रिक रिंग हो गया, इस तरीके से. और इसमें जो सेंट्रल कैनाल रहेगा, इट विल बी एग्जैक्टली इन द सेंटर लाइक दिस, जो ब्लैक कलर का मैंने निकाला है. करेक्ट. सो दैट इज गोइंग टू बी द सेंट्रल कैनाल. और ये सारे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स क्या है? दैट इज नथिंग बट द मैट्रिक्स. राइट. So these small you can say cavities are present which lines this entire concentric rings. That's called as the lacunae. And lacunae contains these cells. These cells are known as osteocytes. अभी नाम से ही पता चलता है. When I say osteocyte का मतलब क्या आता है? Cyte meaning the cell. Osteos का meaning आता है bone. The bone one which is responsible for synthesis of the bone, जो bone बनाने में, matrix बनाने में काम में आता है. So that's called as the osteocytes. So they are present here. So इस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा और ये सब मिलकर बनता है हमारा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज वॉक्समन्स कैनाल. सो हॉरिजॉन्टल कैनाल्स व्हिच जॉइन वन हार्वेशन सिस्टम विद द अनदर. जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक हार्वेशन सिस्टम है, यहाँ पे ऐसा वाला एक हार्वेशन सिस्टम है, दिस वन इज देयर, दिस वन इज देयर. सो दे आर ऑल जॉइंड विद ईच अदर. ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ दिस कैनाल नोन एज द वॉक्समन्स कैनाल. तो अभी देखो कितने सारे न्यू वर्ड्स आ गए. कौन कौन से? सबसे पहला बोन मैरो इसके अंदर है, बोलता हूं मैं. हार्वेशन सिस्टम इज प्रेजेंट इन, नो, बोन मैरो अलग है, हार्वेशन सिस्टम अलग है, बोन मैरो अलग है. टाइप्स ऑफ बोन पढ़ने अपने को स्पॉन्जी बोन और ऐसा, तो उसके हिसाब से आएगा वो. राइट. सो बेसिकली क्या क्या अलग अलग स्ट्रक्चर्स हम लोग अभी पढ़ रहे हैं. जैसे नंबर 1 सबसे पहला तो हमने पढ़ा क्या? देयर इज कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आर प्रेजेंट, सो दिस इज नोन एज द हार्वेशन कैनाल. And Harvatian canal is made up of concentric rings, and each ring will have multiple small cavities called as canaliculi, which contains the osteocytes. Right? And every Harvatian canal will be connected to join with each other to the adjacent Harvatian system by another canal known as the Volkmann's canal. Okay, so इस तरीके से ये structure, this is a typical structure of the bone. हाँ, चलो अभी क्या लास्ट स्लाइड कौन सा चाहिए आपको, बोलो. दिस वन. यस सर. हो गया? यस सर. ये वाला लिख लिया. Osteon or central canal which contains the blood vessels, lymph vessels and nerves. उसके बाद आता है matrix which is in the form of concentric rings called as concentric lamella, and these concentric lamellas will have these small cavities known as osteocytes, or rather they are called as lacunae which contains the osteocytes. Sir, what is concentric lamella? Concentric lamella is basically the hard substance. जो हमने बात किया ना, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, तो उससे ये रिंग्स बनते हैं. ओके, ऐसे समझ में आ रहा है? Sir, so the concentric rings are only called the concentric lamella. हार्वेशन कैनाल, यस, सब मिलकर हार्वेशन कैनाल होता है. कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आर नथिंग बट द लैमेला, द वन विच आई एम ड्रॉइंग राइट नाउ. तो ये पूरा मिलकर बनेगा हार्वेशन कैनाल. तो क्वेश्चन ये आता है ना कि हार्वेशन कैनाल इज मेड अप ऑफ व्हाट? सो इट इज मेड अप ऑफ दिस कॉन्सेंट्रिक लैमेला और कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, गोल गोल. ठीक है. And all these Harvatian canals are joined with each other by the adjacent Harvatian system with the help of Volkmann's canal. तो इससे ही join होता है. Sir, will you please explain osteon once again? See, this is osteon. ये जो concentric rings मिल रहे हैं ना आपको, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Harvatian system या फिर osteon.
बराबर है। अब ये बनता किससे है? तो ये एक्चुअली बनता है विद द हेल्प ऑफ दैट हार्ड सब्सटेंस जो हमने डिस्क्राइब किया, कॉल्ड एज व्हाट? कॉल्ड एज हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या करता है ना, इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग द कॉन्सेंट्रिक रिंग्स लाइक दिस। तो ऐसे 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 गोल गोल रिंग बना देता है। ओके, और उसके एग्जैक्टली सेंटर में रहता है सेंट्रल कैनाल। तो ये सेंट्रल कैनाल है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी Yes, ये जो sir. कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बने ना, तो इन ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के बीच बीच में यहाँ पे इस तरीके से कैविटीज आएंगे लाइक दिस। ओके, ऐसे कैविटीज आएंगे। दीज कैविटीज आर नोन एज द लैक्यूना। इसको हम लोग बोलते हैं लैक्यूना। तो सपोज इफ आई हैव टू ड्रॉ दिस अगेन, अगर मुझे ये फिर से ड्रॉ करना है तो हाउ विल आई ड्रॉ? तो सपोज यहाँ पे एक लैक्यूना है ऐसे, फिर ये रिंग इस तरीके से आएगा, फिर इधर लैक्यूना आएगा लाइक दिस, फिर यहाँ से रिंग आएगा, अगेन वी हैव द लैक्यूना, अगेन वी आर गोइंग टू हैव द रिंग लाइक दिस। जस्ट एज एन एग्जांपल मैंने दिखा है। और इसके अंदर फिर ये स्टार शेप्ड सेल्स होते हैं, दे आर नोन एज द ऑस्टियोसाइट्स। ऐसे स्टार शेप्ड सेल्स होते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज द ऑस्टियोसाइट्स। अब समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, व्हाट फ्लोज थ्रू द कैनाल? कौन से कैनाल से फ्लो होता है? अगर आप सेंट्रल कैनाल की बात कर रहे हो तो सेंट्रल कैनाल में वी हैव ब्लड वेसल्स। ओके, और वॉक्समन्स कैनाल में भी ब्लड वेसल्स रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखो ये कैनालिक्यूलाई की बात हो रही थी ना, देखो किस तरीके से दिख रहा है ये स्ट्रक्चर। अभी मैंने डायग्राम निकाला था, तो ये जो पूरा ऐसा कीड़े जैसा दिख रहा है ना, सेल्स, so that is known as the osteocytes. So canaliculi are the pathways that connects the osteocytes with each other and central canal. क्योंकि कैनालिक्यूलाई से के अंदर से ही ये सारे इसके जो सेल्स होते हैं ऑस्टियोसाइट्स, उनके थ्रेड्स आते हैं, एंड ऑल दिस थ्रेड्स विल गेट कनेक्टेड टू ईच अदर, thus every cell will be connected to each other. Means matrix is composed of, yes, matrix will be composed of दीपिका concentric lamellae, और वो मैट्रिक्स बनता किससे है? हाइड्रोक्सी एपेटाइट से। सो इट मेक्स इट हार्ड। तो सपोज यहाँ पे आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, यहाँ पे एक कैनालिक्यूला है लाइक दिस, और उसका ये लैक्यूना है। ओके, लाइक दिस, ये ऐसा है। तो होता क्या है, द सेल्स आर प्रेजेंट हियर, राइट? इसके अंदर वो टिपिकल स्टार शेप सेल्स रहेंगे। तो ये सेल्स के ना अपने थ्रेड्स रहेंगे जो ये कैनालिक्यूला के अंदर जाएंगे। फिर यहाँ पे ये जो सेल रहेगा, ये सेल के भी थ्रेड्स कैनालिक्यूला के अंदर आएंगे, एंड दैट इज हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सो ऑल सेल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू दिस पर्टिकुलर कैनालिक्यूला। ओके, समझ में आ रहा है? सो ऐसा ये पूरा ऑस्टियन का स्ट्रक्चर रहेगा। सो सेम यहाँ पे भी आएगा, तो इसके भी कुछ थ्रेड्स ऐसे ये वाले स्ट्रक्चर में आएंगे। फिर इधर कोई अगर ऐसा सेल रहेगा तो उसके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स आएंगे, दे ऑल विल स्टार्ट जॉइनिंग विद ईच अदर। सो कैनालिक्यूलाई के अंदर ये सारे थ्रेड्स होते हैं, सो दे आर विद द हेल्प ऑफ दिस थ्रेड्स दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको ये? हेलो, हाँ, चलो गुड। लिख रहे हैं ना सब लोग? ओके, चलो लिख लो सब लोग। आई एम कमिंग इन जस्ट 2 minutes, गिव मी 2 minutes, आता हूं मैं।
चलो, ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना सबको? हेलो, यस सर। स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लो, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं ना। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स विच वी हैव। अभी हम लोग टाइप जब पढ़ेंगे ना, तब आपको डिफाइन होगा कि हर्वेशन कैनाल कहाँ होता है और बोन मैरो कहाँ होते हैं। ओके, सो लेट अस स्टडी दिस स्ट्रक्चर नाउ। ऑन द बेसिस ऑफ द मैट्रिक्स, द बोन्स विल बी ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स. Okay, two different types of bones are there. The first one is known as the compact bone, and the second one is known as the spongy or cancellous bone. ओके, स्पॉन्जी मतलब लाइक अ स्पंज, मतलब उसके अंदर छोटे छोटे कैविटीज या ऐसे ओपनिंग्स रहेंगे, सो इट अपीयर्स लाइक अ स्पंज, इसके लिए उसको नाम दिया है स्पॉन्जी बोन, और ऑल्सो नोन एज कैंसलस. इट इज नॉट लाइक अ स्पॉन्ज बट इट अपीयर्स लाइक अ स्पॉन्ज, इसके लिए उसको नाम दिया स्पॉन्जी बोन और कैंसलस बोन. सो लेट अस स्टडी कि ये क्या होता है. नाउ एज यू कैन सी हियर, अभी ये टिपिकल स्ट्रक्चर है. तो इसमें से एक स्पॉन्जी बोन रहेगा और एक कॉम्पैक्ट बोन रहेगा. तो जैसे इफ आई टेक अ क्रॉस सेक्शन, किसी बोन का मैं क्रॉस सेक्शन लेता हूं, तो ये पूरा बाहर का जो आपको दिख रहा है ना बाहर से, सो दिस एंटायर इज नोन एज द कॉम्पैक्ट बोन. और ये अंदर की तरफ जो जा रहा नेटवर्क दिख रहा है ना जाली जैसा, that is known as the spongy or cancellous bone. So it contains the matrix or oscin and contains the columns called as trabeculae with the spaces. ओके, तो इसके अंदर ऑसिन रहेगा और उसके साथ छोटे 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 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रहेंगे, कॉलम्स रहेंगे. सो वी कॉल देम एज ट्रेबिक्यूले और ऑल्सो ट्रेबिक्यूले along with the spaces. Whereas here in compact bones, the matrix or the oscin is hard, solid without any spaces. इसके अंदर कोई भी spaces, ये बाहर का दिख रहा है तो एकदम hard और solid दिख रहा है और plain दिख रहा है. So it does not have any space. इसके अंदर कोई भी space होता नहीं है. Right? Now, there is no Hervatian system. अच्छा, ये लो last slide. हो गया? यस सर। Okay. ओके, सो ये हो गया आपका एक टिपिकल बेसिक. सो स्पॉन्जी और कैंसलस बोन कैसा रहेगा, जो अंदर की तरफ रहता है, बोन के सेंटर में रहेगा. एंड जनरली इट हैज दीज कॉलम्स कॉल्ड एज अ ट्रेबिक्यूले, एंड दिस ट्रेबिक्यूले विल हैव लॉट ऑफ स्पेसेस. एंड मैट्रिक्स और ऑसिन, बेसिकली उसका जो मैट्रिक्स रहता है वो एक कॉलम से बनता है. ये बाहर का जो मैट्रिक्स होता है या फिर ऑसिन होता है, इट इज हार्ड, सॉलिड एंड विदाउट एनी स्पेस. देखो, स्पॉन्जी बोन सानी का जो होता है ना, स्पॉन्जी बोन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको बहुत सारे थ्रेड्स, कैन यू सी द थ्रेड्स हियर सानी का? थ्रेड्स दिख रहे हैं आपको? बहुत सारे ऐसे जाली जैसे थ्रेड्स दिख रहे हैं, यस और नो? हाँ, तो ये थ्रेड्स क्या है? दिस थ्रेड्स आर कॉल्ड एज अ ट्रेबिक्यूले, व्हिच ऑफ कोर्स इज अ मैट्रिक्स और ऑसिन ऑफ द स्पॉन्जी बोन. करेक्ट? सो ये उसका ऑसिन है और उसको बहुत सारे स्पेसेस आते हैं. राइट, विच ऑफ कोर्स इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनता है. Whereas ये बाहर का जो बोन है ना, ये बाहर का जो बोन है, यू कैन सी हियर इट इज वेरी कॉम्पैक्ट एंड विदाउट एनी स्पेसेस एंड अपीयर्स वेरी सॉलिड. करेक्ट? अभी नेक्स्ट पॉइंट में और क्लियर होगा. देखो नाउ, इफ यू ऑब्जर्व, ये वाला स्पॉन्जी बोन है, ठीक है, दिस वन इज अ स्पॉन्जी बोन, और ये बाकी का पूरा कैसा है, कॉम्पैक्ट बोन. सो स्पॉन्जी बोन डज नॉट हैव एनी हर्वेशियन सिस्टम, इसमें कोई भी हर्वेशियन सिस्टम नहीं है. वेयरएज कॉम्पैक्ट बोन विल हैव द हर्वेशियन सिस्टम. समझ में आ रहा है? तो वो जो हर्वेशियन सिस्टम हमने पढ़ा वो किधर था? इट इज प्रेजेंट इन द कॉम्पैक्ट बोन. मतलब अंदर जो स्पॉन्जी बोन होता है उसके अंदर हर्वेशियन सिस्टम इज एब्सेंट. ठीक है, सो देयर आर नो हर्वेशियन सिस्टम बीइंग प्रेजेंट इन द स्पॉन्जी और कैंसलस बोन.
ठीक है. So the spongy bone will always be filled with either red bone marrow or yellow bone marrow. ठीक है. So generally it has red bone marrow. इसमें red bone marrow सबसे ज्यादा होता है. And this red bone marrow is responsible for what? It is responsible for the production of different types of blood cells, RBCs, WBCs, and platelets. So we call this as hemopoiesis. हीमो का मीनिंग आता है ब्लड, पोएसिस का मतलब आता है सिंथेसिस और प्रोडक्शन. सो हेल्प्स इन द ब्लड सेल प्रोडक्शन. So that is the work of the spongy or cancellous bone. Whereas compact bone will be filled with the yellow bone marrow. अगर compact bone ये नीचे है compact bone, बराबर है ये पूरा, ठीक है. So it is always filled with the yellow marrow and this yellow marrow is known to store the fat. तो ये fat storage का काम करेगा. तो मतलब bone marrow भी कितने हो गए? 2 हो गए. कौन कौन से? रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो. उसमें से रेड बोन मैरो इज प्रेजेंट इन द स्पॉन्जी और कैंसलस बोन, whereas yellow bone marrow is present in the center of the compact bone. Is it clear? और अगर आप ये देखते हो ना, तो ये वाला जो होता है ना हीमोपोएसिस वाला काम, सो ये रेड बोन मैरो इज जनरली प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स. So for example, in expanded ends of the epiphysis, तो यहाँ पे, so this is the end of the long bone. So हर एक end, every end of the long bone will have this spongy or cancellous bone, or rather red bone marrow, whereas the shaft will have the yellow bone marrow. अच्छा, do you want to see one bone? Should I show you this bone here online? एक दिखाओ आपको bone, चलेगा? मैं फीमर लेकर आता हूँ ह्यूमन बीइंग का. आई विल जस्ट शो यू दैट. जस्ट गिव मी अ मिनट. Okay, can you see my video? Yes, sir. Can you see this bone? दिख रहा है आपको? Yes. अच्छा, मैं ना बैकग्राउंड थोड़ी देर के लिए बंद रखता हूं ताकि आपको फिर वो क्लियरली दिखाई देगा. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट. For some time. Can you see this? अभी दिख रहा है bone? Yes, sir. Yes, sir. This is the strongest bone of the body called as the femur. बराबर है? Can you see this end? ये हेड है इसका, जो हमारा जॉइंट बनाता है ना, हिप जॉइंट बोलते हैं ना हम लोग उसको, तो ये वाला है. तो इससे हिप जॉइंट बनता है, बराबर है. और आप यहां से सीधा नीचे जाओगे तो कैन यू सी दिस? दिस फॉर्म्स द नी जॉइंट. दिख रहा है? दिख रहा है सबको? ये नी जॉइंट आएगा हमारा. तो ये दूसरा वो इधर अटैच रहेगा इसको. एक मिनट. हाँ, ये इट इज रियल. पूजा मैडम आई है मीटिंग में, तो उनको मैं भेज देता हूं. यस, डन. आई गेस हो गया है. हाँ, ओके. तो ये इस तरीके से रहेगा. कैन यू सी यहाँ पे ये दिख रहा है आपको थोड़ा सा थ्रेड जैसा, नेटवर्क जैसा दिख रहा है आपको? क्या? कैन यू सी? That is very good. That is called as a spongy bone. Right? So this is spongy bone. तो इसके अंदर है ना, अभी इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं, लेकिन अभी ये थोड़ा सा हार्ड हो चुका है, लेकिन इसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स भी निकलते हैं. So this is actually the spongy bone. So it looks something like this. Okay? तो ये spongy bone है, मतलब ये end of the long bone है, ये भी end of the long bone है. तो यहाँ पे भी आपको, if you see here, can you see?
अरे यार कैसे दिखाऊं मैं आपको? या कैन यू सी दिस? या दिख रहा है? Yes, so this is also a spongy bone. तो इसको भी आप निकाल सकते हो यहाँ से. So this is a typical spongy bone, right? और ये जो shaft होता है ना, this shaft will have the compact bone. तो ये एकदम tough है, ये एकदम hard है, करेक्ट? ये टूटेगा नहीं. और ये असली बोन है ह्यूमन बीइंग का. ठीक है? इज इट क्लियर? ऐसे बहुत सारे बोन्स है मेरे पास, दिखाऊंगा मैं जब कभी क्लासरूम अपना चालू हो जाएगा तो उस टाइम पे मैं ये सब कुछ आपको दिखाऊंगा. इज इट ओके? अब समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है क्या? यस सर. डर गए क्या सब लोग? डरे नहीं ना? नो सर. गुड. डरना भी नहीं. चलो बोन से रखता हूँ पीछे में अभी. क्या सर? दैट मीन्स आवर बोन्स आर ऑल्सो न्यूमेटाइज्ड. नहीं 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 नहीं, उसके अंदर एयर कहाँ ट्रैप होगा ना बेटा. सो दे विल नॉट ट्रैप द एयर. तो न्यूमेटिक तो रहेंगे ही नहीं वो बोन, श्रद्धा. सर बट वो अंदर से हॉलो है ना. अंदर से हॉलो यानी अभी हॉलो दिख रहा है, लेकिन वहां पे कनेक्टिव टिश्यू और उससे वो पूरा फिल्ड रहेगा वो. ठीक है? तो ऐसा दिखता है हॉलो, लेकिन होता नहीं है वो. हाँ, वेरी गुड. अमन को मजा आया. डू यू हैव वर्टिब्रल कॉलम? सर आई हैव आदित्य वर्टिब्रल कॉलम. उसका पूरा नहीं है, बट आई हैव दी वर्टिब्रास. सर्वाइकल वर्टिब्रास अलग से है, थोरैसिक वर्टिब्रा अलग से, लंबार वर्टिब्रा अलग से, सैक्रम अलग से है. तो सारे वर्टिब्रास अलग 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 अलग. अरे Okay, sir. अभी कहाँ दिखाऊं मैं यार तुम लोगों को? अभी दिखाएंगे तो पूरा चैप्टर ही अलग जगह चला जाएगा. ओके, नेक्स्ट टाइम पढ़ते ना, जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उस टाइम पे पढ़ेंगे. ओके, ह्यूमन स्केलेटन पढ़ना है अपने को, तो उस टाइम पे आई विल शो यू. राइट? सो बेसिकली एपिफाइसिस इज नथिंग बट, अच्छा एक मिनट. हाँ, एपिफाइसिस इज नथिंग बट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स. ओके, एंड डायफाइसिस इज नथिंग बट the shaft of bones. तो इस तरीके से ये अलग अलग. So can we say that the spongy or cancellous? हाँ, हेलो. So generally, Yes, sir. So can we? हाँ, cancellous और spongy bone is present at the end of the bones. ओके, तो ये जो बोन है ना, इसका ये वाला पोर्शन तो यहीं पे ये रहेगा. दिस वन इतने ही पोर्शन में रहेगा, बाकी कहीं नहीं रहेगा. ओनली इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन स्पॉन्जी बोन. ओके, क्योंकि उसका काम है हीमोपोएसिस. तो ये बाहर का जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये बाहर का जो दिख रहा है 1 नंबर, दिस इज Compact bone. फीमर. आदित्य इज प्रेजेंट इन द थाई रीजन. थाई बोन होता है ना, उसको हम लोग फीमर बोलते हैं बेटा. ओके ओके, ये वाला कौन सा है? दिस इज कॉल्ड एज द कॉम्पैक्ट बोन. और ये अंदर का रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वी विल कॉल दिस एज Spongy bone. वेरी गुड. सो इट विल बी कॉल्ड एज द स्पॉन्जी बोन. गुड. हाँ बोलो. सर लेकिन ह्यूमन बोन तो व्हाइट होता है ना. व्हाइट मतलब? सर व्हाइट कलर का जिसमें कैल्शियम. हाँ, अभी ये जो बोन मेरे पास है ना, ये व्हाइट नहीं होता है, थोड़ा सा ऐसे ही रहता है कलर. लेकिन ये जो बोन है, इसको प्रिजर्वेटिव यानी पेंट लगाया हुआ है, इसके लिए ऐसे दिख रहा है वो. ओके सर. हाँ, एकदम टिपिकल व्हाइट नहीं होता है, लेकिन प्रिजर्व करना पड़ता है ना इसको, तो इसके लिए केमिकल्स लगाते हैं उसके ऊपर. Anyway, the supporting framework outside the body is called as the exoskeleton, which is जैसे ये वाला हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, मोलस्क में वगैरह होता है. So पाइला ग्लोबोसा शेल. ठीक है? So this is a typical पाइला ग्लोबोसा cell, that is exoskeleton. Whereas the supporting framework inside the body is called as endoskeleton. Like for example, bones and cartilages present in the human beings. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Endoskeleton. Yes, Aditya, you have a doubt? Yes, sir. I have a doubt. बोलो. Sir, cartilage जो होता है ना सर bones में, so sir, does that develop into spongy bones?
नो नो, कार्टिलेज एक्चुअली बोन में नहीं होता है बेटा। कार्टिलेज सिर्फ हम लोगों ने वो एपिफाइजियल प्लेट का एक एग्जांपल देखा है जिसमें इट इज अ पार्ट ऑफ द बोन, अदरवाइज कार्टिलेज इज गोइंग टू बी सेपरेट। जैसे फॉर एग्जांपल ये एंड ऑफ द बोन है, राइट, ये वाला, ठीक है, ये दिस इज एंड ऑफ द बोन, करेक्ट, ये दिख रहा है आपको वीडियो में। Yes, sir. तो यहाँ पे इसके ऊपर कार्टिलेज रहेगा, Okay, sir. ओके, फिर इसके ऊपर दूसरा बोन आएगा विच विल गेट अटैच्ड एंड देन इट्स गोइंग टू फॉर्म द नी जॉइंट, तो ये नी जॉइंट बनाएगा। समझ में आ रहा है? Okay, sir. Got it. चलो, व्हाट आर द फंक्शंस, बोन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहला तो इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट, तो सपोर्ट सिस्टम का काम करता है। सेकंड, इट प्रोवाइड्स शेप टू द एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी, एंड देन ऑफ कोर्स हेल्प्स इन द मूवमेंट एंड लोकोमोशन। दोनों भी होते हैं, मूवमेंट अलग होता है, लोकोमोशन अलग होता है। लोकोमोशन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एंटायर बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, is known as locomotion, whereas movement is when you are standing or sitting and moving your hand the way I am doing it right now, so that's called as the movement. So it helps in both. Also helps in protection because all the important organs are covered from outside by the bony covering. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, heart is covered by the ribs, brain will be covered by the skull or cranium, इस तरीके से, ठीक है। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ द मसल्स, देयर आर मसल्स विच आर अटैच्ड टू द बोन्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज स्केलेटल मसल्स। मसल्स अभी पढ़ना है अपने को तो उसमें आएगा वापस, ठीक है। सो वी कॉल दैट एज स्केलेटल मसल्स। सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट फंक्शंस। और ये हमने देखा है, रेड बोन मैरो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोपोएसिस। प्लस जो मैट्रिक्स बनता है वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बनता है, तो वो क्या रहता है, इट इज नथिंग बट द कैल्शियम एंड फास्फोरस बेस्ड सब्सटेंस, सो एक्ट्स एज इट विल हेल्प इन स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, ठीक है। प्लस ऑल्सो हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फैट, फैट इज स्टोर्ड वेयर, फैट इज स्टोर्ड इन द येलो मैरो। सो ऐसे ये सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं बोन के। सिंपल है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सो आई एम जस्ट रनिंग थ्रू दिस, ओके। Yes, exoskeleton will not have such function. These are the functions of endoskeleton only. Shraddha, good question. लिख लो ये सब फटाफट। लास्ट स्लाइड चाहिए था किसी को? संजीवनी को लास्ट स्लाइड चाहिए था। हीमोपोएसिस का मतलब आता है प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड और ब्लड सेल्स। सोनाली, हीमो मतलब ब्लड, पोएसिस मतलब प्रोडक्शन, सिंथेसिस, ठीक है। तो जब ब्लड सेल्स बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हीमोपोएसिस। डन। इसका पीछे का ये वाला एक्सोस्केलेटन की और पीछू का, ओके। चलो, संजीवनी का हो गया। राइट डाउन ऑल दिस फंक्शंस, देन वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। सर आपका वीडियो फ्रीज नहीं, बराबर चल रहा है अमन, तेरा वीडियो फ्रीज हो गया। नेट चेक कर तेरा अमन, मेरा वीडियो फ्रीज नहीं है ना? नो सर। फिनिश्ड। Shall we move ahead now? Yes. Now, the next important connective tissue which we have, or why I'm saying connective tissue, next important tissue which we have is the muscular tissue. देखो, we started with the epithelial tissue, फिर उसके टाइप्स हमने पढ़े, then we discussed the connective tissue, उसके टाइप पढ़े. Now we need to understand the muscular tissue and its types. Okay, इसमें थोड़ा सा अपना टाइम जाएगा. Okay, हड्डी मेरी बड्डी, वाह, ये क्या आदित्य, हड्डी मेरा बड्डी. लास्ट स्लाइड सर, नेटवर्क लॉस्ट. गुड आदित्य, ये ले लास्ट स्लाइड. आदित्य, डन. ओके, चल.
Now let us understand the muscular tissue. अभी नाम से ही पता चलता है when we say muscular tissue meaning what? It is a tissue which will form the muscles, जो हमारे बॉडी के मसल्स बनाने का काम करता है, ठीक है. So how does our body bring about all these movement? ये अपने को जैसे हम लोग खेलते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं, तो ये कैसे होता है? जैसे साइकिलिंग हो रहा है या फिर हार्ट का जो मूवमेंट हो रहा है, continuous contraction and relaxation of the heart, rhythmic contraction and relaxation, this movement which this person is doing. Now all these movements are possible because of three important structures, जिसके लिए तीन important structures चाहिए. कौन कौन से? तो सबसे पहला, the first structure which we require here is the muscles, क्योंकि muscles का काम होता है to pull the bone, correct? लेकिन बोन को पुल करेंगे तो इसका मतलब सारे एक ही बोन अगर पैर में रहेगा तो चलेगा क्या? नहीं. So naturally there are joints which are present here. So we have the bones, or bones are attached to each other by the joints. So with the help of these three things, जैसे bones, joint and muscles, the entire movement will take place. आप imagine करो ना कि आपकी ये उंगलियां है और ये अभी ऐसे बेंड हो रही है, मैं अभी सिंघम की तरह कर रहा हूं तो ये बेंड हो रहा है, लेकिन इमेजिन करो कि इसमें अगर कोई जॉइंट ही नहीं होता, हम लोग ऐसे ही रहते थे फिर, है ना? हाथ हमारे सीधे ही रहते थे, हम लोग हाथ को ना बेंड कर पाते थे ना कुछ कर पाते थे, इट वुड हैव रिमेन्ड लाइक दिस ओनली, ऐसे. तो कैसे होता? सर्वाइव ही नहीं कर पाते थे अगर ये उंगली नहीं ऐसे 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 बेंड हो रहा है या कुछ हो रहा है, बिकॉज वी वोंट बी एबल टू राइट, वी वोंट बी एबल टू ग्रास्प एनीथिंग लाइक दिस, ठीक है. सो इसके लिए मूवमेंट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स. उसमें से बोन्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द मसल्स नाउ. ओके, जॉइंट्स के लिए अलग चैप्टर है, दैट इज द मूवमेंट एंड लोकोमोशन, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, राइट. लेट अस अंडरस्टैंड द मसल्स नाउ. मसल्स क्या होते हैं? सो टोटल नंबर ऑफ मसल, जैसे टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितना था? 206. वैसे टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी आर अराउंड 639. इतने सारे मसल्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं. टोटल नंबर इज 639. Okay, the strongest muscle in our body is this one, the one which is helpful for eating. Masseter muscle बोलते हैं हम लोग इसको, जो हम लोगों को खाना चबाने में या फिर खाना खाने में काम में आता है. So that's called as the masseter muscle, considered as the strongest muscles of our body, strongest muscle of our body. ठीक है, so that's called as the masseter. The largest muscle in our body is this one, gluteus maximus, जिसके ऊपर आप बैठे हो. So that is the gluteus maximus, muscles of your butts, that is considered as the largest muscle. This one is the strongest, जो इधर रहेगा और इधर रहेगा, जो खाना चबाने में काम में आता है. टोटल नंबर ऑफ मसल्स आर 639. नुपुर, उसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इज द मैसेटर मसल. इसके लिए जो खाना चबाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग मैस्टिकेशन ऐसा बोलते हैं. मैस्टिकेशन का मतलब आता है टू ईट और टू बाइट एंड ईट द फूड. सो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल. देन वी हैव the largest muscle. The largest muscle in our body is this one. This is known as the gluteus maximus. This is the name of the muscle on which you people sit and everyone sits. It's called as the gluteus maximus. Okay, and the smallest muscle in our body will be the stapedius, जो कान के अंदर होता है. Okay, which is attached to the smallest bone in our body called as stapes. तो उसको attached एक muscle रहता है, that is known as the stapedius. So that is considered as the smallest muscle in our body. सबसे छोटा मसल है. ये सब important है बच्चा लोग. Which is the strongest, which is the largest, which is the smallest, और फिर यहाँ पे एक fastest muscle दिया. Which will be the fastest muscle? Any idea? अंदाजा? हार्ट, ब्रेन को कहाँ मसल होता है? टॉइंग, कार्डियक, लेग्स, टंग. द फास्टेस्ट मसल इज दिस, द अपर आईलिड. सब गलत. स्मूथ मसल. अरे फास्टेस्ट, जो फास्ट एकदम फास्ट काम करता है, दैट इज ब्लिंकिंग ऑफ द आई इज डन बाय द अपर आईलिड. सो दिस इज कंसिडर्ड एज द फास्टेस्ट. यस, सानिका ने बताया था, करेक्ट. लेकिन वो इतने सारे आंसर आए सानिका, तेरा सट 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 ऊपर चला गया. गुड सानिका. सानिका वालिम्बे ने बताया था. ओके, बाकी सब लोग हार्ट बीट बता रहे थे, बट हार्ट इज नॉट द फास्टेस्ट मसल. दिस इज द फास्टेस्ट मसल, दैट इज मसल्स ऑफ द अपर आईलिड.
And then we have the longest muscle. Which is the longest muscle? The longest muscle is present in the thigh regions. That is known as the sartorius. Okay, sartorius is considered as the longest muscle. Right? So it is called as the longest muscle in our body. ठीक है, समझ में आया सबको ये? सो क्या क्या आता है, फिर से एक बार रिपीट करें. सबसे पहला कौन सा आता है सर? कैन यू टेल मी द स्मॉलेस्ट मसल? लॉस्ट माय कनेक्शन. ये देख, स्मॉलेस्ट मसल इज स्टेपिडियस. ओके, उसके बाद आता है फास्टेस्ट मसल, दैट इज मसल्स ऑफ द आईलिड. आई एम राइटिंग द नेम ऑफ द मसल. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज लिवेटर palpebri superioris. That is the name of this muscle. eyelid, हमारे अपर eyelid का जो नाम मसल का नाम है ना, तो ये है. This is the levator palpebri superioris. अच्छा, slowest muscle ऐसा कुछ नहीं है श्रद्धा. There is nothing like slowest muscle. ठीक है, so this is the fastest muscle, levator palpebri superioris. सब नाम लिख लिए तुम लोगों ने? Yes or no? Yes, sir. Okay. ठीक है, and this one is the longest muscle, that is known as sartorius. सबसे लंबा मसल है ये. यहां से ऑलमोस्ट इधर से चालू होता है and continues down, पीछे की तरफ जाता है और नी जॉइंट पे अटैच हो जाता है. So that is considered as the longest muscle. ठीक है, like a strip. So that is known as sartorius. थाई मसल में ही रहता है, थाई में ही रहता है. ठीक है, और ये पीछे वाला जो होता है ना, दिस वन, दैट्स कॉल्ड एज द हैमस्ट्रिंग. बैक साइड में रहता है वो, थाई के पीछे रहता है. दैट्स कॉल्ड एज द हैमस्ट्रिंग मसल. सब mesodermal, all are in mesodermal origin. Okay, so this is the basics of what the muscles are and different types of muscles which are present in our body. Now muscular tissue will form almost 40% of your total body weight. Correct? तो पूरा जो बॉडी वेट होता है उसमें से 40% इज दिस, एंड इट इज ऑल डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म. ठीक है, हैमस्ट्रिंग में बहुत दर्द, हाँ हैमस्ट्रिंग मसल्स में दर्द हो सकता है, स्पेशली स्पोर्ट्स इंजरी कॉमन है हैमस्ट्रिंग इंजरी. ओके, स्ट्रेचिंग होता है स्पोर्ट्स में, सबसे ज्यादा यूज होता है हैमस्ट्रिंग मसल. Okay, now muscles are made up of what? Suppose if I magnify this particular muscle, अब ये कौन सा muscle है? This is a muscle of the bone. So it is known as the voluntary muscle, or also called as the skeletal muscle. So what it will be made up of? So this muscle will be made up of a thin muscle fiber. ठीक है, so they are formed by the muscle cells, and these muscle cells are known as the muscle fibers. What are they? They are thin, elongated, and having one or more nuclei, and they are basically the contractile tissue. One or more nuclei रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? syncytium. Okay, it's called as the syncytium. syncytium का मतलब आता है the cell having more than one nuclei. Sir please, सर इसके पीछे वाली स्लाइड एक्सप्लेन करो ना. मेरा इंटरनेट कनेक्शन था, प्रॉब्लम था. अमन को कौन सा स्लाइड चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए? ये वाला? इसको क्या एक्सप्लेन करने का? ओए अमन, अमन अरोड़े, अरे हाँ, लेकिन इसको क्या एक्सप्लेन करूं? Longest muscle, sartorius. This is the name of the muscle of the eyelid, called as levator palpebri superioris. This is eyelid muscle, upper eyelid muscle. नाम ही है बेटा अमन.
इसके पीछे ये स्लाइड था, ये वाला मसल्स ऑफ द अपर आईलिड, सेम नाम ही है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। और अब अभी ये समझा रहा हूं मैं, ठीक है। सो इट फॉर्म्स द 40% ऑफ द बॉडी वेट and derived of course from the mesoderm, and the muscles are made up of these long thread like structures known as the muscle fibers. So they are thin, elongated, having more than one nuclei, and they are contractile in nature. ठीक है, so they are contractile, so they are made up of the specialized proteins, and these specialized proteins are known as the contractile proteins. तो उससे ये structure और ये particular muscle fiber बनता है, right? Now muscular tissue is also called as therefore contractile tissue. Why? Because these particular structures, muscle fibers, they will contract, ठीक है, और बाद में वो अपने आप रिलैक्स हो जाएंगे. Again they will contract, again they will contract like this. Okay, so they show an important characteristic of contractility, and that is why. अच्छा, contraction होता है तो क्या होता है? Shortening होता है ना, shortening होता है तो it helps in pulling the bone. तो bone को pull करने में ये काम में आता है, ठीक है. ओके, ना थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. मस्कुलर टिश्यू हम लोग थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि मसल फाइबर्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या टिश्यू बनता है. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस. अच्छा, नाउ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस, दैट देयर आर मसल फाइबर्स व्हिच आर प्रेजेंट हियर, एंड दीस मसल फाइबर्स दे आर गोइंग टू फॉर्म दिस एंटायर मसल. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हाउ एंड व्हाट दिस मसल फाइबर इज. सर प्लीज शो लास्ट स्लाइड, ये वाला. हो गया? मधुरा, मधुरा. थोड़ा मसल फाइबर्स और अच्छे से पढ़ते हैं, थोड़ा और उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश है. सिंसाइटियम का मतलब आता है बेटा हैविंग मल्टीपल न्यूक्लियाई. अ सेल हैविंग मल्टीपल न्यूक्लियाई, सिंसाइटियम. सिनोसाइटिक सिंसाइटियम ऐसा बोलते हैं. Now, just like any other structure in our body, this muscle fiber will also be surrounded by the tissue. ठीक है. अच्छा, मसल फाइबर्स को हम लोग, the muscle fibers we use the, for this we use the term sarcos. मसल फाइबर का लिए जो बायोलॉजिकल टर्म आता है, दैट्स कॉल्ड एज सार्कोस. एंड सार्कोस का मतलब आता है फ्लेश, बराबर है. मसल्स को हम लोग फ्लेश बोलते हैं ना, सो सार्कोस का मीनिंग आता है फ्लेश. So with regard to biology, flesh is the soft substance that consists of muscles and fat. जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं उनको ये पता रहेगा. तो ये टिपिकल फ्लेश है. तो ये फ्लेश को बायोलॉजिकल टर्म में क्या बोलते हैं? सार्कोस. ओके, अभी गणपति खत्म होने के बाद नॉनवेज के लेने के लिए जाओगे तो वहां पे जाके ये मत बोलना है 1 किलो सार्कोस देना, ठीक है. तो कान के पीछे देगा फटाक से और बोलेगा कुछ भी बकवास कर रहा है. प्लीज डोंट डू दैट. सार्कोस का मीनिंग आता है फ्लेश, इतना याद रखो. ओके, एंड फ्लेश मे बी यूज्ड एज फूड, जो हम लोग करते हैं, खाते हैं, इन विच केस इट इज कॉमनली कॉल्ड एज द मीट. ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं मीट, राइट. ओके, नाउ अब ये सार्कोस का या फिर इसका स्टडी हम लोग थोड़ा सा करते हैं. नाउ दिस इज हाउ द मसल फाइबर विल लुक लाइक. ओके, ये पूरा मसल फाइबर आपको ऐसे, ये एक मसल फाइबर है. नाउ यू कैन सी दैट देयर इज अ कवरिंग व्हिच इज प्रेजेंट अराउंड दिस. ओके, सोनाली को बैक स्क्रीन, हाँ ले ले भाई, भाई नहीं बहन. हो गया? ओके, चलो अभी नाउ हटा दिया. अभी नाउ इफ यू सी हियर, ये पूरा मसल फाइबर है. Now this muscle fiber will be covered by covering. Can you see a flap like covering which is coming out? This covering is known as or rather a cell membrane that is known as sarcolemma. Okay, sarcolemma ऐसा हम लोग उसको बोलते हैं, which is nothing but the cell membrane, और plasma lemma. तो ये पूरा जो थ्रेड, ये जो कवरिंग जो दिख रहा है आपको बाहर निकल रहा है, that's called as the sarcolemma, which is nothing but the cell membrane और प्लाज्मा लेमा. अच्छा, इसके अंदर रहेगा नेटवर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो द नेटवर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट हियर इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबको पता रहेगा, बोलता हूं वो. हाँ, और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे, ये सब न्यूक्लियस है, ठीक है.
तो ये एक मसल फाइबर है और उसको 3 न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज सिंसाइटियल. Now, the network of endoplasmic reticulum is known as sarcoplasmic reticulum. And naturally ये सेल मेम्ब्रेन है. जैसा हमारा अगर सेल रहेगा तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, इसके अंदर बीच में न्यूक्लियस रहेगा, तो ये वाला जो रीजन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल दिस एज? व्हाट डू वी कॉल दिस एज? साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म. तो वैसा ही एक मिनट है बच्चा लोग, जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, सो जस्ट लाइक सेल के अंदर रहता है साइटोप्लाज्म, तो ये भी अगर एक सेल है तो इसका भी साइटोप्लाज्म रहेगा. बट द सेल इज नोन एज सार्कोस. इसके लिए इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, दैट साइटोप्लाज्म विल बी कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म. So instead of calling this as cytoplasm, we will call this as sarcoplasm. अच्छा, साइटोप्लाज्म जो होता है ना, वो नॉर्मल सेल में बनता है जेली लाइक. बराबर है, जो आप लोगों को पता रहेगा जेली लाइक सब्सटेंस रहता है. सो दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म. बट इज इट लुकिंग लाइक अ जेली लाइक सब्सटेंस? नहीं. इंस्टेड हम लोगों को ना ऐसे छोटे छोटे थ्रेड्स दिख रहे हैं. बराबर है. Now what are these threads called as? मतलब sarcoplasm is made up of what? So this sarcoplasm will be made up of these small fibers known as myofibril. Yes, drumsticks की तरह दिख रहा है. या फिर वो आते हैं ना वो चॉकलेट स्टिक्स बर्तन में, ऐसे डब्बे में चॉकलेट स्टिक्स आते हैं ना, तो वैसे ही दिखता है. करेक्ट. तो ये जो सिंगल स्टिक जो दिख रहा है ना, दैट इज नोन एज दी myofibril. Very important. So this is how the cytoplasm of this particular cell will be made up of. So we have the muscle fiber, the entire muscle fiber. The cell membrane of the muscle fiber is known as plasma lemma, or it is also called as sarcolemma. Then it will have the network of endoplasmic reticulum. It's called as sarcoplasmic reticulum. The cytoplasm is known as sarcoplasm, and this cytoplasm is made up of these small thread-like structures or stick-like structures known as the myofibril. And what is myofibril? So myofibril is basically the contractile tissue. तो जो सारे मायोफाइब्रिल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये पूरा मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होगा. समझ में आ रहा है? सार्कोमियर इज द कवरिंग बेटा. लेकिन यहाँ पे ये जो कवरिंग दिख रहा है ना श्रद्धा, दैट कवरिंग इज द सेल मेम्ब्रेन. तो उसको नाम दिया है सार्कोलेमा. ओके सर. हाँ ठीक है. तो यहाँ पे मायोफाइब्रिल है, मतलब मायोफाइब्रिल का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन. So meaning the myofibril is going to have that specialized contractile tissue. Why difficult to understand? डायग्राम में बहुत क्लियर है. हमारे दिमाग में सेल मतलब जो मैंने यहाँ पे निकाला ऐसा होता है, लेकिन मसल का सेल ऐसे रहेगा. ओके, सेल मेम्ब्रेन की जगह हमने इसको क्या नाम दिया है? सार्कोलेमा. अच्छा, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हमने क्या नाम दिया है? सार्कोप्लाज्म. नॉर्मल सेल का साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक. इसका जो साइटोप्लाज्म मतलब ये जो सार्कोप्लाज्म है ये बनता है मायोफाइब्रिल से. Okay, and then it's going to have endoplasmic reticulum, but here this endoplasmic reticulum is known as sarcoplasmic reticulum. ठीक है. So this is how the structure is seen. और contractile tissue कौन सा है? So contractile structure is the myofibril. So we need to observe this myofibril now. तो इसको थोड़ा सा enlarge कर लेते हैं myofibril को और देखते हैं कि myofibril कैसे बनता है. So if you see the myofibril looks something like this. अभी इसको और थोड़ा सा enlarge करके ये पार्ट देखते हैं. So this part will look something like this. बराबर. तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये थिन थ्रेड दिख रहा है, और जो रेड कलर का दिख रहा है वो थिक थ्रेड है. और ये सारे थ्रेड्स किससे बनते हैं? These threads are made up of proteins. तो ये सब प्रोटीन्स का ही बनता है. So thick thread is known as the thick filament. Thin thread is known as the thin filament. So the thick filament is made up of a protein, and that protein is known as myosin.
ठीक है. So this thick filament is called as the myosin, whereas the thin filament is made up of a protein called as actin. So there are two important contractile proteins. कौन कौन सा? Actin and myosin. Actin is a thin filament, myosin is a thick filament. ये डायग्राम प्लीज ड्रॉ करके रखो. इसके आगे और एक दो डायग्राम्स है जो आपको ड्रॉ करने. प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम्स. दिस ये वाला नीचे वाला डायग्राम करो, ड्रॉ. So the muscle will basically contract due to the protein filament called as actin and myosin. तो इनका contraction, दोनों का contraction होता है, तो that helps in muscle contraction. And that is why actin and myosin is also known as the contractile proteins. Okay, so they are called as the contractile proteins. ठीक है, प्लीज ड्रॉ दिस. कौन सा बाकी है ऋतुजा तेरा? सर पीछे वाले बहुत है. बहुत बाकी है. हाँ सर. बाप रे बाप रे बाप. चलो अभी ये तो ड्रॉ करो. थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ दो और फिर रिकॉर्डिंग में से देख लेना. नाइल गो लिटिल स्लो. मैं देता हूँ टाइम आपको लिखने के लिए. ड्रॉ करके हो गया होगा तो प्लीज लेट मी नो. क्या बात कर रहे हो? मैं फास्ट ले रहा हूँ आज? कुछ भी. यस सर. चुप. फिनिश्ड. ओके चलो, शैल वी मूव इट नाउ. यस सर. ठीक है, चलो कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स को और थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं अभी. मीन्स सर यू आर नॉट गिविंग टाइम टू राइट. ओके फाइन. नाउ मसल फाइबर्स आर इनर्वेटेड बाय द नर्व्स. ठीक है, तो ये सारे मसल फाइबर्स, इनर्वेटेड का मतलब आता है द नर्व्स विल एंटर इन द मसल्स. क्योंकि क्या हो रहा है ना, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. अब ये कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब ये मसल्स को स्टिमुलस मिलेगा. तो स्टिमुलस कौन लेकर आ रहा है? द स्टिमुलस विल बी गिवन बाय द नर्व्स. And of course, blood vessels will be required because blood vessels will help in providing them the nourishment. ठीक है, so blood vessels will supply nourishment, nutrients to the muscle fibers or muscle cells. In turn, muscle cells will release their excretory waste, metabolic waste into the blood. तो इसके लिए ब्लड सेल्स की या फिर ब्लड वेसल्स की जरूरत होती है. और नर्व्स क्या काम करते हैं? नर्व्स विल सेंड देम द स्टिमुलस सो दैट द मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मेरा हाथ ऐसे किया तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया ना मसल्स का. ठीक है, इफ माय मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग हियर, हु इज मेकिंग दिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट? ये मसल्स को किसी ना किसी को तो स्टिमुलस भेजना पड़ेगा. तो स्टिमुलस किसने भेजा? मेरे ब्रेन ने. मेरे ब्रेन ने क्या बोला कि आपको स्टूडेंट्स को दिखाना है कि मसल्स कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. सो आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस एक्शन. तो ये एक्शन किसकी वजह से आया? बिकॉज ऑफ द स्टिमुलस फ्रॉम द नर्व्स. So innervation का मतलब आता है they basically will have a nerve supply, rich in nerve supply, and along with that they will have blood supply also, so that you know all the nourishment to the muscle cells will be given through the blood. तो ब्लड से न्यूट्रिएंट्स जाएंगे मसल सेल्स में. मसल सेल्स वो न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करेंगे तो दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द मेटाबॉलिक वेस्ट. द मेटाबॉलिक वेस्ट विल बी अगेन रिलीज्ड इनटू द ब्लड. ठीक है, सो दिस इज हाउ द मसल फाइबर्स विल बी सीन. शैल वी मूव अहेड?
Muscles are not permeable, it's a tissue बेटा श्रद्धा. Just like ये होता है ना बाकी के टिश्यूज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है ना, तो वैसे इसमें भी होगा ना कैपिलरीज के साथ. ओके चलो, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के हिसाब से यानी कहाँ पे कौन से मसल्स है, वी हैव लोकेशन एंड फंक्शन, वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स. ओके 3 अलग अलग टाइप्स होते हैं. कौन कौन से? तो सबसे पहला जो टाइप आता है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्राइटेड मसल और स्केलेटल मसल और वॉलेंट्री मसल. ठीक है, सो इधर इट इज कॉल्ड एज स्ट्राइटेड और स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल. Second one is known as unstriated, smooth or involuntary muscle, and the last one is the specialized muscle found only in the heart called as cardiac muscle. Okay, striated because it shows alternate bands. जो हम लोगों ने देखा था ना एक्टिन और मायोसिन की वजह से बैंड्स बने थे, इसके लिए उसको स्ट्राइशंस मतलब स्ट्रिप्स, जो कपड़ों के ऊपर ऐसे पट्टियां रहती है ना, सो दैट्स कॉल्ड एज स्ट्राइशंस, तो इसके लिए इसको स्ट्राइटेड बोलते हैं. स्केलेटल बिकॉज दे आर ऑल अटैच्ड टू द बोन्स. वॉलेंट्री बिकॉज देयर एक्शन इज अंडर आवर कंट्रोल, इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. दिस इज अनस्ट्राइटेड बिकॉज इट डज नॉट शो द फाइबर्स. This is smooth because it is not in contact with the bones, or neither it has the muscle fibers in it. It's made up of different type of cells, and it is involuntary because its action is not under our control. ठीक है, जैसे ये इसोफेगस है, पेरिस्टाल्सिस हो रहा है, कैन वी कंट्रोल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? ऐसा ऐसा करके हम लोग पेरिस्टाल्सिस कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं, ये अपने आप ही होना है. बराबर है. एंड कार्डियक मसल मतलब मसल्स ऑफ द हार्ट, सिंपल. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मसल्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. इज इट क्लियर? अब इसको लिख लो. Done, sir. हो गया. एक मिनट. हाँ, क्या हो गया सर? प्लीज. सानिका ने सर प्लीज ऐसे लिखा है. क्या है सानिका? लास्ट स्लाइड. अच्छा, इतना बड़ा प्लीज क्यों किया तूने फिर? ये वाला. अच्छा अच्छा, लिखिए अभी. ओके नाउ अभी ना हम लोग अब ये 3 अलग अलग टाइप्स की बात कर रहे थे. तो उसमें से जो पहला टाइप आता है ना दैट इज स्ट्राइटेड, स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल. लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड. इसका एक थोड़ा आधा स्ट्रक्चर तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ दिस मसल फाइबर्स, उससे ये बनता है. ठीक है, स्केलेटल मसल, व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलेटल मसल? बिकॉज दीज मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स. ओके, बोन्स इन द हेड, बोन्स इन द ट्रंक एंड लिम्स. तो जितने भी हमारे बॉडी के सारे मसल्स है, दे आर बेसिकली अटैच्ड टू द बोन्स, एंड बिकॉज दे आर अटैच्ड टू द बोन्स देयरफॉर वी कॉल देम एज स्केलेटल मसल्स. ओके, now that's why we call them as skeletal muscles. Now their activity is under our control, we can control their activity.
So that is under our will, and because we can control their activity, therefore we also call them as voluntary muscles. So why voluntary muscles? Because their activity is under our control, we can control by our will. Why it is called as skeletal muscles? Because they are all attached to the bones. तो ये सब के सब bones को attached होते हैं. So that is the position. And then of course we call them as striated, because these muscles, they are made up of these fibers, which are cylindrical, unbranched, called as muscle fibers. See, unbranched, multinucleated, they are known as the muscle fibers. बाप रे, last slide. फिर से घाई हो गया. चलो आप लोग लिखो, मैं पानी लेकर आता हूं. किधर ट्रंक के बाद क्या है? हेड, ट्रंक एंड लेग्स रहेगा रे. लिम्स. हेड, ट्रंक एंड लिम्स. हेलो. ओके, चलो. Now I was talking about this skeletal muscles. अच्छा, इसको skeletal क्यों बोलते हैं वो पता चला. इसको हम लोग voluntary क्यों बोलते हैं, that also we have understood. Now let us try and understand कि why they are called as the striated muscles. Strips होते हैं. Can you see this light and dark bands being present? दिख रहा है आपको? Light इस तरीके से ऐसे दिख रहा है. देखो, light band, dark band, light band. मतलब it appears like a stripe. जैसे मेरे शर्ट के ऊपर है, देखो stripes है ना, तो वैसा ये दिख रहा है. So that is why it is known as striated muscle. लेकिन ये बैंड बनते कैसे हैं?
Okay, now the fibers, it is basically made up of these muscle fibers. So these fibers are cylindrical, unbranched and multinucleated, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, syncytial, बराबर है, with nuclei placed at the periphery. Periphery का मतलब आता है away from the center. Normally क्या होता है, जैसे मैंने दिखाया था, देखो यहाँ पे अगर सेल रहेगा तो सेल के एग्जैक्टली सेंटर में न्यूक्लियस होता है, लेकिन ये सेल कैसा है, ऐसा वाला है, और इसका न्यूक्लियस किधर है, पेरीफेरी. पेरीफेरी मतलब अवे फ्रॉम सेंटर. क्रिकेट ग्राउंड होता है, क्रिकेट ग्राउंड के एग्जैक्टली सेंटर में क्या होता है, पिच. वेरी गुड निशिता, पिच होता है. और एकदम बाहर क्या रहता है, बाउंड्री. वेरी गुड. सो द बाउंड्री इज व्हाट, बाउंड्री इज periphery. Very good, fantastic. So boundary is periphery. Anything which is away from the center is periphery. तो यहाँ पे nuclei is also placed at the periphery. मतलब सेंटर से थोड़ा सा ये दूर रहेगा. Is it clear? निश्चित आपका माइक चालू है बेटा, लिख लिया ये. चलवी, चलो आगे बढ़ते हैं. Now, they show this presence of these cross striations, are also called as the bands, and as they show these cross striations or the bands, therefore we call them as the striated muscles. इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं striated muscles. अभी हम लोगों को ना एक्चुअली ये बैंड बनता कैसा है ना, वो पढ़ना है, ठीक है. तो उसके डिटेल्स, मतलब मायोफाइब्रिल को और थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, बिकॉज अच्छा, मायोफाइब्रिल इज मेड अप ऑफ व्हाट, myofibril is made up of what? Proteins. Very good. What are these proteins called as? Myosin and actin. Myosin and actin. Very good. Myosin is which filament? Thick filament. Thick filament. And actin is which filament? Thin Thin filament. filament. Thin filament. अच्छा, ये जो बाहर का जो सेल मेम्ब्रेन है, this cell membrane is known as what? Plasma lemma. Plasma lemma, or also called as what? Starts with S. Sarcolemma. Very good. Sarcolemma. Very good. इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, that cytoplasm of this cell is known as what? Sarcoplasm. 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 And sarcoplasm is made up of what? Myofibril. Mycofibril नहीं, myofibril. They are called as what? Myofibril. बराबर है? And myofibril is made up of thick and thin filament called as actin and myosin. समझ में आ रहा है? हेलो, किसी के डैडी की आवाज आ रही है या भैया की आवाज आ रही है? Are you all getting this? हम लोग बाहर से अंदर की तरफ गए. And we try to understand all the structures in details. So if you see here, we will see dark and light band. So dark band is known as the A band, light band is known as I band. आएगा बाद में. So light is I band, or also called as isotropic band. अच्छा, why it is called as isotropic? Because the light can pass through it. ठीक है? That is how the name isotropic. Isotropic का meaning ही वो होता है. सानिका, आपका माइक चालू है बेटा. हाँ, thank you. So isotropic का मीनिंग आता है, it's a structure through which the light can pass. So उसको हम लोग बोलते हैं isotropic. तो वैसा ये है isotropic band. Okay. उसके बाद आता है A band, और also called as the anisotropic band. Aniso का मतलब आता है the one through which the light cannot pass. इसके थ्रू लाइट कभी पास होता नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? We call this as anisotropic band. तो ऐसे दो टाइप के बैंड्स आएंगे. वन इज द आइसोट्रोपिक बैंड एंड द अदर वन इज एनिसोट्रोपिक बैंड. ओके, सो आई बैंड इज बेसिकली ए लाइट बैंड एंड ए बैंड इज कॉल्ड एज एनिसोट्रोपिक और डार्क बैंड. ठीक है, सो ऐसे ये दो बैंड्स रहेंगे एंड दीज बैंड्स विल स्टार्ट फॉर्मिंग द अल्टरनेट स्ट्राइएशंस. अमन को क्या हो गया? हाँ, हो गया. ये समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, अमन, इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक्चुअली मसल से लाइट पास होता है. आइसोट्रोपिक का मतलब आता है द लाइट कैन पास.
मतलब सपोज ये अगर मेरा आइसोट्रॉपिक हैंड है एंड इफ आई पुट अ लाइट ऑन दिस हैंड, द लाइट कैन पास थ्रू दिस। तो मतलब ये इतना थिन फिलामेंट है, समझ में आ रहा है? ओके, एंड एनिसोट्रॉपिक का मतलब इट इज वेरी थिक, सो उसके थ्रू लाइट पास नहीं होगा। हाँ, so they are not related to passing the light, Shraddha. Name is given like that, and meaning of these terms is the one which I am explaining to you right now. Okay, हाँ, good. चलो आगे बढ़े। लिख लिया क्या ये सबने? Yes, sir. Sure, good. Okay, now each fiber contains large number of myofibrils, जो हमने already पढ़ा है, and they are enclosed in a thin membrane known as the sarcolemma, which is the cell membrane. ठीक है, तो sarcolemma से ये covered रहेगा बाहर से, ये अपने को पता ही है। अच्छा, अभी myofibril का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो, so a myofibril will look something like this, तो ये ऐसे दिखेगा, करेक्ट? तो यहाँ पे जो बीच में जो है वो लाइट बैंड है, और ये जो डार्क दिख रहा है दैट्स कॉल्ड एज द डार्क बैंड। ठीक है, सो वी विल हैव टू स्टडी ऑल दिस। अब ये पूरा अपने को पढ़ना है कि ये क्या क्या और कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। वापस वही था, इसके लिए मैंने ज्यादा रुका नहीं इधर, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सेम है। नाउ द एंटायर मसल विल बी रैप्ड, पूरा ये मसल जो बंडल रहता है, सो इट इज रैप्ड इन अ कोलेजन फाइबर शीट कॉल्ड एज द fascia, okay, or fascia. So there is something known as the deep fascia or superficial fascia. So fascia is what? It's a covering which is made up of collagen fibers which surrounds the entire muscle. तो ये पूरा मसल है, ये मसल को मैंने कट किया, कट करने के बाद आपको ये ऐसे दिख रहा है। ओके, सो दिस, ये मसल को बाहर से जो कवरिंग आता है, दैट बाहर का जो कवरिंग आता है, दैट इज नोन एज द fascia. Because it's a covering which is around a muscle, therefore it is known as the muscle fascia. यहां तक ठीक? Yes or no? हाँ, चलो आगे ना। अच्छा, अभी अगर आप देखते हो ना, तो यहाँ पे ये पूरा मसल बंडल है, ये वाला जो है ना, this is called as the muscle bundle. Each muscle bundle will be made up of muscle fiber and each muscle fiber will be made up of myofibril. समझ में आ रहा है? ठीक है, सो और ये पूरा मिलकर, ये सब मिलकर ये जो पूरा बड़ा स्ट्रक्चर बन गया है, दिस इज नोन एज द मसल स्पिंडल। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो पूरा मसल होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज मसल स्पिंडल। मसल स्पिंडल विल बी मेड अप ऑफ द मसल बंडल। मसल बंडल will be made up of the muscle fibers and muscle fibers are made up of myofibril. और myofibril किससे बनता है? एक्टिन एंड मायोसिन। समझा? ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? आगे बढ़ू? Yes, sir. Sir, what is that muscle spindle? मसल स्पिंडल यानी ये पूरा मसल, हमारे बॉडी का जो पूरा मसल होता है ना, दैट्स कॉल्ड एज मसल स्पिंडल, जिसको हमने अभी कट किया है ना। तो मसल स्पिंडल के अंदर ऐसे बड़े बहुत सारे बंडल्स होते हैं, उसको नाम दिया मसल बंडल, जो बनता है मसल फाइबर से। अगर आप अंदर का स्ट्रक्चर देखते हो तो उसके अंदर मसल फाइबर है, और मसल फाइबर बनता है मायोफाइब्रिल से, और मायोफाइब्रिल बनता है एक्टिन एंड मायोसिन से। ओके, Yes, sir. गुड। अभी मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर फिर से थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। दिस इज अ टिपिकल मायोफाइब्रिल। ना, अब मायोफाइब्रिल विल बी मेड अप ऑफ दीज बैंड। सो दिस वन, ये जो दिख रहा है ना आपको, लाइट बैंड और आई बैंड। अच्छा, ये जो डार्क रेड कलर का लाइन दिख रहा है, व्हाट इज इट कॉल्ड एज? हेलो,
ये जो डार्क रेड कलर का जो लाइन दिख रहा है आपको बीच में, दिस वन, नहीं, ये डार्क कलर का रेड लाइन है, दिस वन, ये क्या है? ये लाइन किससे बना हुआ है? नो ए बैंड, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? ये डार्क लाइन थिक लाइन है ना, थिक फिलामेंट. थिक फिलामेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? वेरी गुड निशिता, मायोसिन, परफेक्ट. और ये जो ब्लू कलर का लाइन है, ये किससे बना होगा? एक्टिन. वेरी गुड निशिता, एक्टिन. समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? हाँ, सबको समझ रहा है कि सिर्फ निशिता को ही समझ रहा है? ये डार्क कलर के रेड कलर के लाइंस दिख रहे हैं आपको डायग्राम में? यस, if you can see these dark colored lines, these lines are nothing but the thick filament. वो thick filament बनता है किससे? मायोसिन से, बराबर है? और ये जो ब्लू कलर के लाइंस आपको दिख रहे हैं, वो ब्लू कलर के लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज मेड अप ऑफ एक्टिन फिलामेंट. सो कैन आई से दैट देयर इज अ रीजन इन दिस एंटायर मायोफाइब्रिल वेयर मायोसिन इज एब्सेंट? समझ में आ रहा है? There is a region of the myofibril where myosin filament is absent. It is made up of only actin. तो ये देखते हो ना आप पूरा. So ये पूरा जो दिखता है, एक मिनट में कलर चेंज करता हूं ताकि आपको समझ में आए. या तो ये जो पूरा जो दिख रहा है ना आपको, दिस वन, यहाँ पे यू विल नॉट सी द मायोसिन फिलामेंट, राइट? इधर आपको मायोसिन फिलामेंट नहीं दिख रहा है. And because there is absence of myosin filament and only presence of actin filament, so that is known as light band or isotropic band. Whereas if you say this region, ये जो पूरा region बनता है, this region is made up of both actin and myosin. Therefore, it is known as the dark band or A band or anisotropic band. क्योंकि thick filament है तो light pass नहीं होगा, थिन फिलामेंट है तो लाइट पास होगा. समझ में आ रहा है? सो आई बैंड इज द वन विच डज नॉट हैव, आई बैंड इज द वन विच डज नॉट, इट इज मेड अप ऑफ ओनली एक्टिन फिलामेंट, एंड ए बैंड इज द वन विच इज मेड अप ऑफ बोथ एक्टिन एंड मायोसिन. ठीक है? So the one which is made up of both actin and myosin. यहां तक ठीक है? Right? चलो आगे. Now there is one line which is present here. Can you see this zigzag line being present? और ये zigzag line किसको कनेक्ट कर रहा है? The zigzag line is connecting to whom? Actin. Very good. So this zigzag line which connects the actin filaments with each other is known as the Z line, or also called as the Krause's membrane. Okay. So Z line is can I say that Z line is present exactly at the center of I band? Correct? हाँ, और वो ब्लू लाइन क्या है अमन? दैट ब्लू लाइन इज नथिंग बट द एक्टिन फिलामेंट. सो इट कनेक्ट्स द एक्टिन फिलामेंट. सो इट इज, सिंस इट इज प्रेजेंट एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द लाइट बैंड. ओके. Whereas if you see here, यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लैक कलर का लाइन निकाला हुआ है, देखो बीच में, exactly in the center of A band. So this is known as the H zone or Henson's zone. ठीक है? So it is called as the H zone or Henson's zone. ये बड़ा सा जोन है. Again I am drawing this. यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं पूरा. So this is the entire zone here. अच्छा, ये H zone का खासियत क्या है अभी बोलो? What is the speciality of the H zone? Observe the diagram. Present in dark. Very good, Nishita. It does not have actin filament. Can you see actin filament being present there? Very nice. Nishita is focusing. Very good, Nishita. So there is no presence of
द एक्टिन फिलामेंट, अगर आप अच्छे से क्लोजली देखोगे तो एक्टिन फिलामेंट इज एब्सेंट, सो इट कंटेन्स ओनली मायोसिन फिलामेंट। और उसके एग्जैक्टली सेंटर में, ये जोन के एग्जैक्टली सेंटर में देयर इज वन मोर लाइन, सो इट इज नोन एज द एम लाइन। ठीक है, इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है सबको? हाँ, सो ये सारा एक टिपिकल डायग्राम है इसका। सो दिस इज द एंटायर कॉन्ट्रैक्टाइल जोन, राइट फ्रॉम वन जेड लाइन टू द अनदर जेड लाइन। ये पूरा ऐसा कॉन्ट्रैक्टाइल रीजन आता है। दिस एंटायर कॉन्ट्रैक्टाइल रीजन बिटवीन द टू जेड लाइन्स इज नोन एज सार्कोमियर, and sarcomere is considered as the contractile portion of the muscles. yes मधुरा एक्सप्लेन करता हूं मैं, एक मिनट रुको। मधुरा वांट्स टू नो जेड लाइन। तो अगर आप देखोगे ना मधुरा, तो यहाँ पे ये जो एक्टिन फिलामेंट है ब्लू कलर का, उसके बीच में यहाँ पे ऐसे आपको जिगजैग लाइन दिखेगा। कैन यू सी? अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, राइट? सो दिस इज नोन एज द जेड लाइन। जो क्या कर रहा है, वो एक एक्टिन फिलामेंट को दूसरे एक्टिन फिलामेंट से कनेक्ट कर रहा है। इज इट क्लियर? गुड। अमन को नहीं समझ में आया एच जोन। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करते हो तो अमन, आपको ये दिखेगा कि यहां पे दिस रीजन, कौन सा? डार्क लाइन देखो, डार्क डार्क। कैन यू सी? यहाँ पे उन्होंने इस तरीके से निकाला है, देखो दिस वन। इट्स एन एरिया ऑफ द, it is an area which is present exactly in the center of dark band which does not have the actin filament. Okay, it's a central area of the dark band which does not have the actin filament called as the H zone. Okay, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? We call this as the H zone, एंड H जोन के सेंटर में ब्लैक कलर का लाइन दिख रहा है, वो लाइन को हमने नाम दिया है M लाइन। मतलब एक्टिन फिलामेंट को पकड़ के रखने में कौन काम में आ रहा है? Z लाइन। मायोसिन फिलामेंट को एक जगह पकड़ के रखने में काम कौन कर रहा है? M लाइन, विच इज अ पार्ट ऑफ द H जोन और हेंसन जोन। इज इट क्लियर? ठीक है, हम लोग फिर से इसको रिपीट करेंगे, डोंट वरी। लेकिन है थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, इसके लिए मैं और थोड़ा स्लो जा रहा हूं, समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, इसके लिए मैं थोड़ा सुंदर। एम लाइन नहीं समझा? वेरी गुड। वैष्णवी को एम लाइन नहीं समझा। देखो वैष्णवी, अच्छा ये डायग्राम दिख रहा है आपको? ये ना, ये बीच में नहीं आना चाहिए यार, येलो वाला एरो। कैन यू सी दिस डायग्राम नाउ? Yes, sir. हाँ, एक मिनट। हाँ, इसमें क्या है पहले देख लेता हूं मैं। ओके, अब ये दिख रहा है डायग्राम आपको बराबर सबको? यस सर। हाँ, अभी ध्यान दो, एक मिनट। हाँ, किधर गया मेरा? ओके, नाउ कैन यू सी दिस रीजन हियर? ये वाला रीजन आपको दिख रहा है, दिस बैंड, ये जोन दिख रहा है जो मैंने अभी रेड कलर से लाइन किया, Yes, करेक्ट? sir. दिस जोन इज कॉल्ड एज व्हाट? Light eye band. Very good. So it is called as the I band, na? It is known as the I band or light band. Correct?
कैन यू सी दिस जोन? ये वाला जोन आपको दिख रहा है? दिस इज नोन एज व्हाट? A band. A band. This is called as the A band. Very good. I band is made up of what? Only actin filament. Only actin filament. अच्छा, actin filament मतलब thin है, तो उसको पकड़ के रखना पड़ेगा, right? So this actin filament is held together by another fibrous band, which is this one, जो यहाँ पे exactly center में है इसके, जो मैं अभी blue color से draw कर रहा हूँ. Can you see this? तो ये जो लाइन है, ये जो फाइब्रस टिश्यू का ही बना हुआ है, दिस लाइन इज नोन एज व्हाट? Z line. दिस इज कॉल्ड एज द जेड लाइन. बराबर है? Yes, sir. और ऑल्सो कॉल्ड एज क्राउसेज मेम्ब्रेन, क्योंकि ये किससे बना हुआ है? मेम्ब्रेनस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, जिसका काम क्या रहेगा? टू होल्ड दीज एक्टिन फिलामेंट. ये जो थिन फिलामेंट्स है उसको एक साथ पकड़ के रखने में काम में आएगा. यहां तक ठीक? आई बैंड इज क्लियर? Yes, sir. ओके. नाउ अभी यहां पे अगर आप ए बैंड की तरफ आते हो तो ए बैंड इज मेड अप ऑफ व्हाट? ये जो रेड कलर का डार्क लाइन है दैट इज नोन एज मायोसिन, और जो ब्लू कलर का जो लाइन दिख रहा है थिन, दैट इज नोन एज एक्टिन. तो ए बैंड दोनों से बनता है, लाइट बैंड एज वेल एज डार्क बैंड. इसके बीच में इफ यू सी दैट देयर इज वन रीजन, ये वाला एक रीजन है, देखो एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द ए बैंड, जो मैंने अभी ब्लू कलर से मार्क किया है. कैन यू सी दिस रीजन? दिख रहा है? हाँ. सो इट इज नोन एज व्हाट? Yes. इट इज कॉल्ड एज द एच जोन और हेंसन्स जोन. जोन इसके लिए बोला है क्योंकि बड़ा सा एरिया है, इसके लिए उसको जोन बोला गया है. बराबर है? अच्छा, ये जोन का खासियत क्या है? दिस जोन डज नॉट शो, इट डज नॉट हैव द एक्टिन फिलामेंट. बराबर है? सो इट हैज व्हाट? इट हैज ओनली मायोसिन. यस और नो? Yes, sir. जैसे एक्टिन को पकड़ने के लिए आई बैंड में टू होल्ड एक्टिन टुगेदर वी हैव व्हाट? जेड लाइन और क्राउसेज मेम्ब्रेन, वैसा मायोसिन को एक जगह पकड़ने के रखने के लिए वी हैव अनदर लाइन हियर. सो दिस लाइन इज कॉल्ड एज व्हाट? M line. वेरी गुड. तो एम लाइन भी किससे बना होगा? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से. समझा? Sir, then what is the use of H zone? अरे वो एक ऐसा एरिया है बेटा जहां पे एक्टिन नहीं है और वो बड़ा एरिया है, इसके लिए उसको जोन नाम दिया है. वैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या? आई बैंड में जेड लाइन के पास नहीं दिख रहा है ना. जोन का मतलब क्या आता है? एरिया. सो इट्स अ लार्ज एरिया which does not have the actin, has only myosin. इसके लिए उसको नाम दिया है H zone. उसके बीच में एक लाइन दिख रहा है, that's called as M line, which helps in holding the myosin filament. H zone का अलग कुछ काम नहीं है, but we are defining the structure in the tissue, naming the structure in the tissue. समझ में आ रहा है? Yes, sir. FCT is fibrous connective tissue. अमन, H जो A बैंड में दोनों है, लेकिन ऑलरेडी एक्टिन को पीछे किसी ने पकड़ के रखा है ना, तो उसको होल्ड करने की, आगे होल्ड करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन अ सपोर्ट. एम लाइन में किधर एक्टिन होगा? एम लाइन में कहां से एक्टिन आएगा? एच जोन में ही एक्टिन नहीं है, तो एम लाइन में एक्टिन किधर से आ गया? मधुरा, डायग्राम अच्छे से देखो, फिर से यहां पे देखो, सेकंड स्लॉट. कैन यू सी हियर? ये वाला रीजन देखो. कैन यू सी एक्टिन यहां पे खत्म हो गया, एक्टिन इधर खत्म हो गया, लेकिन मायोसिन कंटिन्यू है.
तो यहाँ पे ये जो एरिया बना है, ये एरिया में इट हैज ओनली मायोसिन एंड नो एक्टिन बीइंग प्रेजेंट. Yes, those three lines are called as the M line. Correct, Vaishnavi. ठीक है? Now, next important part. I hope everyone is getting this. सबको समझ रहा है? Okay. Now, if you see here, right from this Z line, ये Z line से लेकर ये वाले Z line तक ये जो पूरा एरिया बना हुआ है, दिस एंटायर एरिया इज नोन एज सार्कोमियर, विच इज द कॉन्ट्रैक्टाइल रीजन. क्यों कॉन्ट्रैक्टाइल रीजन? बिकॉज मायोसिन ऐसा है, एक्टिन ऐसा है, एक्टिन इज स्लाइडिंग ओवर मायोसिन. इफ यू सी हियर, यहाँ पे दो एक्टिन के बीच में गैप है, तो ये एक्टिन ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला ऐसे शिफ्ट हो जाएगा. सो इट विल स्लाइड ओवर द मायोसिन. इसके लिए वो गैप है. समझ में आ रहा है? और ये दोनों अगर स्लाइड हो गए ऐसे एक दूसरे के ऊपर, तो कैन आई से दैट द पोर्शन विल बिकम स्मॉल. दो हेडलाइन अगर एक दूसरे के क्लोज आ गए तो मतलब रीजन छोटा हो गया. यस और नो? Yes, अगर sir. रीजन छोटा हो गया मतलब क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया. मतलब क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया. समझ में आ रहा है? और सारे अगर ये सार्कोमियर्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा. सिंपल. ठीक है? ओए, द बॉयज एंड द गर्ल्स. Yes, sir. हाँ, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो. वापस हम लोग समझ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. फिर से मैं रिवाइज करूंगा ये सब चीजों को. डरना मत. सिर्फ ये सारा ना स्ट्रक्चर्स है, ये स्ट्रक्चर्स को दिमाग में फिट करना बहुत जरूरी है. ओके? Okay, sir. चलो, गुड. अभी हम लोग यहाँ पे रुकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए भी अभी, है ना? एंड इट्स ऑलरेडी 6 o'clock नाउ. Thank you, sir. Bye. यस, चलो बाय. ये भाग जाती है पहले बाय बोल के, इतनी जल्दी रहती है ना उसको. थैंक यू सर, बाय. पता नहीं कहाँ जाती है. चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल. नेक्स्ट लेक्चर में वापस मैं रिवाइज करूंगा, डोंट वरी. Thank you, sir. यस, Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. बाय 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 बाय.